So good afternoon, everyone. This is Hitesh Jangi from Mumbai Support, and I welcome you all to this webinar where we will see the Elder Repo system and its usage. So this webinar will overall give you an idea that how you can analyze the stocks on the basis of Elder Impulse system. Okay, so we will learn how Elder system we can plot and how to read the EIS, and then we'll go the reversal pattern of EIS. Okay, so I'm starting this by plotting on the chart. Okay, so first you have to go to this Spider software. Okay, and then you can go to the chart and you can press S on the chart. Okay, so when you press S, you will get this study selection window. Okay, there you can press E, so you will get this Elder Impulse system. Okay, so here you can see the parameters. When you select this, here at the bottom it will be highlighted, and then you can go to the parameters. So question arises, how this EIS formed? Okay, so the reason why EIS I have selected, because EIS is a good indicator, but very less people know about this EIS. Okay, because ये जो indicator है वो form हुआ है दो indicators से. It's a combination of two indicators. So here you can see at the top short period, long period, and average period. Okay, these are the three columns of the MACD histogram. Okay, and at the bottom this EMA period is the average of 13-day average. Okay, so it's a combination of a MACD histogram as well as the EMA. Okay, when these both indicators satisfy, then it will give you the direction. Okay, so first we have to select these parameters, then we can give the colors, because अभी currently आप check करो तो यहाँ पे default colors है green, red and blue. Okay, so आप यहाँ पे check करोगे, यहाँ पे एक option है to increase the thickness, and then you can plot on the chart. Before plotting you can choose this all time frame, so आपको every time frame में वो show होगा. Okay, so अगर आप जब आप यहाँ पे check कर रहे हो, when we plot we will get this kind of bars. Okay, so अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहली चीज ये जो इंडिकेटर है वो बार फॉर्म में होगा, वो कोई कैंडलस्टिक फॉर्म में नहीं होगा. आपको हमेशा वो बार्स में ही देखना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल आइडिया मिलेगा. Okay, so first, what is EIS? EIS is a technical analysis indicator that combines two different indicators, जो कि है MACD histogram as well as EMA. Okay, and turns them into a powerful indicator, because normally क्या होता है कि when we add any one indicator, so हमें support के लिए दूसरा indicator use करना पड़ता है. Okay, but ये एक ऐसा इंडिकेटर है जहाँ पे दो इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक सिंगल इंडिकेटर है जो कि आपको डिफाइन करेगा ट्रेंड का. ओके, सो आप ये जब आप चेक करोगे यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर्स के बार्स आएंगे. जब आप इसको कैंडलस्टिक पे डालोगे सो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा. ओके, टू कन्वर्ट दिस इनटू बार यू हैव टू प्रेस बी फॉर बॉम्बे. ओके, जब आप बार प्रेस करोगे देन ओनली यू विल गेट दिस बार फॉर्म. ओके, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे बार्स आपको कलर 3 कलर्स में शो होगा, ब्लू, ग्रीन एंड रेड वन. ओके, सो अब ये हर बार डिफाइन कैसे हो रहा है पहले वो चेक करते हैं. ओके, आप यहाँ पे चेक करोगे, फर्स्ट दिस इज अ बुलिश बार, बिकॉज हमें पता है मार्केट में मेजरली ग्रीन कलर में बुलिश चीजें होती है. ओके, सो इसका कॉम्बिनेशन कैसा बनाया है, where your price is above the EMA. Okay, the price is above the EMA and the MACD histogram is above zero line, then you will get a green bar. अब आप यहाँ पे जब चेक करोगे, जैसे मैंने पैरामीटर्स डाले हैं. ओके, ये पैरामीटर्स है. अब इसके ऊपर मैं आपको एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कैसा है मैं चार्ट पे डाल के दिखाता हूँ. ओके, एड स्टडी एवरेज. ओके, सो एवरेज में अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स में E13 पे मैं ऐड कर रहा हूँ,
चार्ट पे, एंड साथ में मैंने यहाँ पे MACD हिस्टोग्राम में ले लेता हूँ। ओके, सेम पैरामीटर्स एडेड। अब आप जब चेक करोगे, जब आप ES डाल रहे हो, ओके, तो आपको ये जो चारों पैरामीटर्स है, यू कैन सी एट द टॉप E13 एज वेल एज द MACD हिस्टोग्राम के जो 12, 26 एंड 9 के पैरामीटर्स, वो सारे सेम विंडो के अंदर है। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन है, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होता है, देन ओनली यू विल गेट द ग्रीन बार, रेड बार और ब्लू बार। ओके, बट हियर अगर आप चेक करोगे कि कंडीशन के बेसिस पे क्या है, व्हेन यू विल गेट अ बुलिश बार, जब आपका प्राइस अबव एवरेज होगा। ओके, योर करंट प्राइस इज अबव द एवरेज प्लस योर MACD हिस्टोग्राम शुड बी अबव 0, तब ही आपको ये ग्रीन बार शो होगा। ग्रीन बार इंडिकेट्स फॉर बुलिश सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे मैं चार्ट पे जाता हूँ और आप यहाँ पे जब चेक कर रहे हो, ये आपका करंट प्राइस है। ओके, आपका कैंडल स्टिक जो है वो मे बी रेड हो सकता है एट अ टाइम, बट अगर ये खाली इंडिकेटर के साथ कंपेयर होता है टू गेट अ प्रॉपर डायरेक्शन। ओके, सो अगर मैं इसको बार्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो यू कैन सी ये जो है करंट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है, दैट इज अबाउट द एवरेज, and at the same time you can see the MACD histogram is also the above 0 line. Okay, ये आप चेक करो, ये 0 लाइन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब आपको ये ग्रीन बार दिखाई देगा। ओके, which means whenever a candle is close above the average, which I already plotted as E13. Okay, when your average is above E13, sorry, the price is above the E13, and at the same time your MACD histogram is above 0 line, then only you will get a green bar. Okay, so ये आपको हेल्प करेगा to find out a bullish candle. Then we'll go for the second bar, which is the blue bar. Okay, अब blue bar क्या है? As an example, when you add two indicators. Okay, so जरूरी नहीं कि हमेशा वो आपके फेवर में ही हो। Like अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, एक कंडीशन उसको फॉलो कर सकती है, दूसरी वाली नहीं करेगी। Okay, out of these two indicators, one is following the trend, but other one is not following. ओके, सो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ये पर्टिकुलर अगर आप निफ्टी का देखो, यहाँ पे ब्लू बार जो है, ओके, ब्लू बार जो है यहाँ पे प्राइस इज बिलो द एवरेज। ओके, ये प्राइस इज बिलो द एवरेज, but at the same time you can see at MACD histogram is above 0 line. Okay, so one indicator is following the trend, but other one is not. Okay, so in short, when you see, you will get a blue bar. Okay, so here price is below and MACD histogram is above 0. ये हो गया आपका एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊं, देयर इज ऑल्सो वन प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पे प्राइस ऊपर हो, प्राइस इज अबव द 0 लाइन। जैसे कि एक और ढूंढ लेते हैं अपन यहाँ पे, एंड द MACD शुड बी बिलो दैट। आई थिंक दिस, नहीं ये भी नहीं है। यस, देखो ये क्राइटेरिया। ओके, हियर दिस इज द क्राइटेरिया। ये भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे करंटली अगर हम चेक करेंगे, ओके, यू कैन सी एट दिस टाइम द प्राइस इज अबव दिस एवरेज, price is above this average, so average condition is satisfying, but at the same time you can see at the MACD histogram which is below 0 line. Okay, so one condition is following but second condition is failed, then only you will get this blue bar. Okay, so you can see these are the two probabilities in the blue bar, where price is above the average and MACD histogram is below 0. Okay, then you will get this blue bar, or you can get when a price is below average and MACD is above 0 line, then you can get this blue bar. Okay, so we have two probabilities for getting this blue bar. Okay, which means we majorly define that it's a sideways because it's not fully bullish or not fully bearish. Okay, so it's a sideways bar. Now
The third type of bar is the bearish bar, okay, which is exactly vice versa of bullish bar, where price is below the average and at the same time MACD histogram is below zero line. Simply bearish. Okay, so that you can see with the help of example, you can see here your price is below this bar and also the MACD histogram is below zero line. Okay, so this is how you will get this red bar. Okay, so ये तो हमने देखा कि ये तीन डिफरेंट टाइप के EIS के बार्स हैं जो आपको डिफाइन करता है बुलिश, बेरिश और साइडवेज. Because major of the indicators will not show you where you are heading to the sideways. Okay, but with the help of this indicator, you will get a clear signal that with the help of blue bars that this stock is in sideways. Okay, so this will help you. Now, whenever we trade with any indicator, okay, there will be always two possibilities that you can go with the trend or you can go for the reversal trend. Okay, so here we majorly focus on the types of EIS reversal. Okay, so EIS reversal, first is systematic reversal and the second one is the sharp reversal. Okay, so what is systematic reversal? Actually, this systematic reversal pattern I already showed in one of the webinar, which name starts from position trading with EIS. Okay, where I showed a 3 candle pattern reversal. Okay, but yes, it's a subjective, it's not in the book, it's only a concept which I actually follow with my own theory. Okay, so this both systematic as well as the sharp reversal which I follow. Okay, so what is systematic reversal? Okay, so when I say systematic, which means a proper bearish trend, then we'll get a sideways candle and then a bullish trend starts. Okay, so this is a systematic reversal where you can see a bullish reversal and there is a bearish reversal, which is exactly vice versa of bullish reversal. Okay, जहाँ पे आपको simply red candle आएगी, एक red maybe a bearish trend चल रहा रहेगा, then a sideways candle आएगी blue color की, and then green candle start होगा, green bar start होगा. Okay, same way bearish उसका opposite हो गया. ये इसके basis पे एक webinar already conduct किया गया है. Okay, that you can see on our Sparta YouTube channel. Okay, तो उसके लिए अगर हम देखें, अगर एक रिवर्सल अगर मुझे देखना है तो आप ये चेक कर सकते हो. ओके, कल अगर आप चेक करो ये एबीसी कैपिटल का चार्ट है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है. ओके, 215 को ये चार्ट तक बुलिश था, देन ये साइडवेज है, देन ये बेयरिश हो गया. ओके, तो ये सिस्टमैटिक रिवर्सल. व्हेन दिस कैंडल्स डू ब्रेक वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट. ओके, तो ये सिस्टमैटिक रिवर्सल है. इसको आप डेली में यूज करो, वीकली पे यूज करो, इंटरडे में यूज करो, एवरी टाइम फ्रेम में काम आने वाला है. ओके, सो ये आप यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द शार्प रिवर्सल, okay, because ये webinar already conduct किया गया है, so we'll move on the sharp reversal. Okay, sharp reversal का जहाँ पे आपका sideways candle आएगा ही नहीं. Okay, after a bearish trend, then suddenly you will get a green candle. Means उसी trend को cover करने के लिए sideways आया नहीं, सीधा bullish हुआ. Which means we expect कि हाँ suddenly कुछ ऐसा हुआ है जिसके से वो trend तुरंत change हो रहा है. Okay, so bullish reversal and bearish reversal. अब बुलिश रिवर्सल में क्या होगा, पहला ग्रीन रेड बार, देन स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार, एंड बेरिश रिवर्सल में स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार, देन स्ट्रॉन्ग रेड बार. अब ये चीज आपको चार्ट पे देखने मिलेगा. जैसे एग्जांपल देख रहे हो यहाँ पे ये करंटली, तो ये आपको चार्ट में फॉर्म होता रहेगा. ओके, लाइक जैसे एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड चल रहा था, देन सडनली यू विल गेट अ रेड बार एंड देन उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो बिकॉज दिस बेरिश ट्रेंड. ओके, सो ये रिवर्सल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. सो हाउ टू ट्रेड दिस रिवर्सल? क्वेश्चन arises, how to find this reversal and how to find it's a genuine stock trend. ओके, तो सबसे पहले चीज, आपको जो रिवर्सल मिल रहा है वो हमेशा आपके, अगर आप इंट्राडे फॉलो कर रहे हो तो इंट्राडे के हाई पे ही बनना चाहिए.
ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था HCL टेक। ओके, HCL टेक है, यू कैन सी ये जो बुलिश रिवर्सल हुआ है ये डे लो कैंडल था till 10 o'clock. Okay, and then suddenly you got a reversal, green candle, a green bar, sorry. Okay, so जो ट्रेंड था वहां से उसने तुरंत रिवर्सल किया. So what you can do, you can enter at that time, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त तक ये ट्रेंड बेयरिश है. ओके, 1060 and then here 1067. ओके, 7 रुपीज का रिस्क है. ओके, व्हेन यू एंटर्ड ओवर हियर, ओके 1068, so ये reversal start हो गया. So what you can do, you can take this candle as a stop loss and you can take entry at over here 1068, 8 rupees risk, and you can wait for at least 8 rupees reward. Okay, so you can get this rally. Okay, so this is how you can find out, but आपको हमेशा find out ये करना है कि you will get this sharp reversal at day high or day low. मैं यहाँ पे देखूं, ये इसका exact reversal आपको यहाँ हुआ है. Okay, but I will not take this trade because it was not at day high. Either ये कैंडल होना चाहिए या फिर ये कैंडल होना चाहिए. एनी वन ऑफ द कैंडल शुड बी अ डे हाई, तभी आपको प्रॉपर पूरा रैली का ट्रेंड आपको फेवर में मिलेगा. ओके, so yeah, so this is a kind of pattern we will use in today's webinar. The first example, it's on 11th May. ओके, पुलिस एग्जांपल है और ये एग्जांपल है टाटा केमिकल का. ओके, सबसे पहले हम जाते हैं चार्ट पे, टाटा केमिकल. ओके, सो ये है 11th का. अभी एग्जांपल, अभी करंटली मैं जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं E13 एंड MACD हिस्टोग्राम, इसको मैं हाइड कर देता हूं बिकॉज इट्स प्योरली बेस्ड ऑन ES. ओके, सो ये दिस इज द पैटर्न. ओके, सो आप यहाँ पे चेक करोगे ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन, बिकॉज यू कैन सी ये पूरा ट्रेंड नीचे जा रहा था एंड देन वी गॉट अ बुलिश रिवर्सल. ओके, सो हियर यू कैन सी वी कैन एंटर ओवर हियर. अब एंट्री कहाँ लेंगे, U5. ओके, अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है यू कैन प्रेस U. ओके, और यू कैन प्रेस कंट्रोल E फॉर दिस टूल बार. अगर आपको कंट्रोल E कर लोगे, आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, यू कैन यूज टू प्लॉट ऑन द चार्ट. ओके, देन अगेन इसको क्लिक करोगे. मैंने सपोज अगर यहाँ पे क्लिक किया, ओके, बिकॉज ये कैंडल थोड़ी बड़ी है. ओके, एंड देन ये कैंडल का अगर मैं लो देखूं, ओके, हियर इट्स 950. सो अगर मैं देखूं 973 से लेके 950 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर सकता. ओके, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर इंट्राडे यू कैन नॉट टेक सच अ ह्यूज स्टॉप लॉस. ओके, बट हाँ, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे लेके एट द एंड वी कैन मैनेज दिस 60 से लेके 73, ऑलमोस्ट 13 रुपीज का स्टॉप लॉस है. ओके, सो वी कैन मेंटेन दिस, बट वी कैन नॉट मेंटेन टिल 950. ओके, अगर कैंडल छोटी हो देन यू कैन गो फॉर द रेड कैंडल लो स्टॉप लॉस. ओके, सो ग्रीन बार एंड द रेड बार, इट्स अ बुलिश ट्रेंड. ओके, सो आप अगर यहाँ पे 73 पे एंट्री लेते हो, ओके, सो यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट 13 or 14 रुपीज. ओके, टिल हियर. ओके, अगर यहाँ पे 73 है, 83 एंड नियर 97, 83 एंड नियर 90 यू कैन एग्जिट. अब ये कोई कैंडल के आसपास यू कैन एग्जिट द ट्रेड. ओके, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर कैंडल का डिफरेंस क्या है, then you can add one indicator name as formula. Okay, so here when you go to the formulas, there is a first option is A1 spread. Okay, what this spread means कि आपके कैंडल का डिफरेंस कितना है. Okay, so when you use this spread it will highlight you the difference of the candles. So I'll choose the input as a high and low, so it will give me the whole candles difference, whole candles range. Okay, so first I choose this and then मैंने इसको यहाँ पे पैरामीटर्स में गया, डिस्प्ले में, एंड हियर इनपुट में देखो अब एक ऑप्शन है प्राइस क्लोज वर्सेस
and column 2 में price open. So I'll choose high, price high, and here price low. Okay, so ये per candle का जो range है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा. Just example, अगर मैं यहाँ पे choose करता हूँ, when I click on this, you can see at the bottom the difference is 14.40 पैसा. Okay, अगर मैं 14.40 पैसा अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ at the high, okay, मुझे यहाँ पे clearly दिख रहा है कि 973.60 plus 14.40 पैसा, तो it's near about 989. Yes, 989. Okay, so I'll exit over here at 989. Okay, the trend simple है, ज़्यादा difficulty नहीं है इस indicator में. Just it will give you the trend and you have to identify where it formed, and you just only need to check manually that candles formation is at day high or day low. Okay, बाकी बीच में भी करोगे, बट बीच में देखने से आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिल जाएंगे, बट कंफर्मेशन अगेन करना पड़ेगा. बट व्हेन यू गेट अ स्टॉक एट डे हाई और डे लो, you will get the maximum probability that it will reverse. Okay, so अगर आप यहाँ पे चेक करो, टाटा केमिकल्स ने पूरा दिन फॉर्म किया and this was at bottom, suddenly it got buying and then it started moving upward. Okay, जब इसने क्रॉस किया यहाँ से लेके यहाँ पे we got this target because ये कैंडल काफी बड़ा है, and if someone wanted to take a low, this candle's low as a stop loss, then he can also maintain. But I prefer maximum you can take 1 or 1.5% risk reward for intraday. Okay, so this is an example of a Tata Chemical which was formed on 11th of May. Okay, and for plotting you can use these tools. If you want to remove this tool, there are two options. First is you can click on this scissor and you can select the line, or you can go right click. Then there is an option of a remove tool. You can click on that and then you can select and you can press OK. So it will be removed. So this tool will help you to plotting your target, stop loss, and your entry point. Okay, so for plotting horizontal line, you can press U. Okay, now we'll move for the bearish example. Okay, here that is Nifty. Okay, so it's an index. Okay, and the example is on 11th May. You can see on this. So same time जैसे मैंने कहा था, you can get this reversal on day high or day low. Okay, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, first green candle and then red candle. तो ये day start में हो गया था on 11th. यहाँ पे reversal आया इस index में, and then you can take your entry. ये currently तो ये index है, but overall if you get the same criteria in stocks, you can go. अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर logically अगर हम देखें, अगर suppose ये tradable index हो है, okay, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आएगा, अगर आएगा तो then you can follow. Okay, same way ये low break हुआ, okay, you can get the difference because of this spread. मैंने यहाँ पे click किया, okay, this is 71 points difference and you can easily recover over here. Okay, same way if this formation you will get in a stock, जैसे कि हमने देखा था टाटा केमिकल्स में. ओके, अगर आपको यहाँ पे स्टॉक्स में अगर लगे कि हाँ कि चलो ये रिस्क ज्यादा है, okay, so what you can do, you can buy call options. If you're a buyer, you can buy call options and then you can maintain this lower stop loss and then you can go for long. Okay, because काफी बार ऐसा होता है कि अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना है, then you can go for a call options. And if someone who is a writer, okay, अभी उन्हें पता है कि 950 का स्टॉप लॉस है, अगर मैं यहाँ पे मेंटेन करूँ ये 950 है, so 915 के नीचे जो पुट है, okay, वो राइट कर सकते हैं, because this formation shows if this level breaks then you have to exit. Okay, so अगर आप यहाँ पे अगर ये जगह पे अगर आपने पुट राइट किया and then if स्टॉक नीचे आया यहाँ पे, then you have to exit that put, okay, with a stop loss. But here in this scenario, stock moved and put moved in your favor if you're a writer then.
Okay, so but yeah, if you're a buyer, simply go for buying a call at this level. Okay, so yeah, अब जाते हैं एग्जांपल्स में, जो कि रिसेंट एग्जांपल्स रहेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम भी देखेंगे हम. ओके, सबसे पहला चीज बुलिश ट्रेंड देख लेते हैं जो कल के दिन में हुआ. मार्केट भले ही एट स्टार्ट 200 पॉइंट्स पॉजिटिव था, बट एट एंड ऑफ द डे मार्केट क्लोज एट नियर मोर देन 30 और 40 पॉइंट्स नेगेटिव. ओके, सो ये देखते हैं HDFC फर्स्ट एग्जांपल. ओके, सो यहाँ पे मैं डाल देता कोड. ओके, सो आप यहाँ पे चेक करो जो स्टॉक है. ओके, एट दिस कैंडल स्टार्टेड एट 9:30, आपको देखो प्योर रिवर्सल दिया. ओके, यू गॉट द रिवर्सल. एंड अब जब यहाँ पे चेक करोगे ये रिवर्सल पे, कि यहाँ पे हम एंटर ले सकते हैं एंड देन यू कैन मेंटेन दिस लो एज अ स्टॉप लॉस. अब क्वेश्चन ये है, अगर एक कैंडल बड़ा है, ओके, सो आप 50% पे भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो या फिर इसको इग्नोर भी कर सकते हो. ओके, सो हियर यू कैन एंटर ओवर हियर एंड देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग. अब अगर मैं यहाँ पे देखो कैंडल का डिफरेंस कितना है, अब देखो यहाँ पे बॉटम पे आया हुआ है 28 पॉइंट्स. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 28 पॉइंट्स अगर मैं देखूँ रफली, तो 66, 86 नियर 90s के आसपास आपको मिलेगा, 95 के आसपास. ओके, अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए. बट अगर आपको लगे कैंडल बड़ा है, यू कैन प्रेस कंट्रोल G फॉर पिवट्स. ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि एक पिवट है यहाँ पे नजदीक में 88 पे. सो यू कैन एग्जिट ओवर देयर. अगर आपने पिवट पे एग्जिट किया होता तो ये जो पॉइंट है, अब यहीं पे एग्जिट कर लेते, आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करने की जरूरत ही नहीं था. ओके, सो यू कैन यूज पिवट फॉर एग्जिटिंग योर पोजिशन एज वेल. या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि कहीं पे अगर आपको रिवर्सल मिल गया, जैसे देखो यहाँ से बुलिश आ रहा है ट्रेंड, जैसे सडनली यू गॉट अ ब्लू कैंडल, you can exit from that trade. So different ways that you can use while trading, but yes, it's a bullish signal. But ये आप देखो purely ये डे लो पे था. ओके, डे लो से अगर आपको सडनली बाइंग आई है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मूव, शार्प मूव. ओके, देन वी कैन गो ऑन कोटक बैंक 1922. ओके, अब चाहिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा सारे स्टॉक्स. कोटक बैंक डे की सेकंड कैंडल बेरिश, थर्ड कैंडल बुलिश. यहाँ से आप बाइंग करोगे. ओके, यू कैन गो विद द फ्लो. अब आप यहाँ पे चेक करो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो 10 पॉइंट्स है. ओके, बट और ये जो कैंडल का लो है दैट इज 1756 और आपका एंट्री पॉइंट है 1774. ओके, सो ऑलमोस्ट अगर हम देखो 18 पॉइंट्स है, सो यहाँ से हम 18 पॉइंट्स के लिए वेट कर सकते हैं. और यू कैन गो फॉर द पिवट 2, पिवट 1, ओके, विच इज R1, बिकॉज यहाँ पे इसने पिवट क्रॉस किया. ओके, सो यू कैन गो विद दिस रैली. आप सेम टाइम पे इक्विटी खरीद सकते हो, यू कैन गो फॉर फ्यूचर्स, और यू कैन बाय अ कॉल, और यू कैन राइट अ पुट. You have all 4 options. Okay, so this is a bullish trend, but आप चेक करोगे ये डे लो पे है. This candle is having a day low. Then there is an option of a star. Okay, ये मैं सारे 15 मिनट्स में चेक कर रहा हूँ. So यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टार. स्टार में मैंने क्लिक किया एंड आप यहाँ पे चेक करोगे स्टार में ये रिवर्सल दिया 10:29. ओके, 10:30 के आसपास. सो पहले वहां से स्टॉक फॉल हुआ, देन आपको यहाँ पे रिवर्सल मिला एंड इस रिवर्सल पे आप एंट्री ले सकते हो. अगर आप यहाँ पे चेक करोगे द डिफरेंस इज 3.20. ओके, ऑलमोस्ट 1.5% है. तो अगर आपको सेम क्राइटेरिया, अगर आपको वो ज्यादा लगे, सो यू कैन एग्जिट नियर दिस R1. R1 पे एग्जिट लिया, देन उसने भले वो क्लोजिंग ऊपर दिखाया, बट ओवरऑल इट रीच द टारगेट. ओके, देन अगर आप देखो टाटा पावर विच इज ऑन डेली चार्ट. ओके, अब आप देखोगे टाटा पावर क्या है. सेम फॉर्मेशन वी कैन यूज इन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स. ओके, जरूर नहीं कि आप इसको इंटरडे में ही काम करो, आप इसको चेंज करके आप डेली भी कर लो. और बट जब आप डेली यूज करो, दैट शुड बी स्विंग हाई. उस वक्त वो स्विंग हाई होना चाहिए. ओके, अगर आप यहाँ पे चेक करो, देखो ये जो बेरिश ट्रेंड था ऊपर गया एंड देन यू कैन सी ये उस पर्टिकुलर स्विंग का लो था. ओके, सो हियर जब वो लो था उसने स्विंग क्रॉस किया एंड देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग.
ओके, सो अगर आप यहाँ पे चेक करो, इस कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, स्टॉप लॉस, एंड देन यू कैन गो विद द रैली। अगर कहीं पे लगे कि आपका 1:1 हो गया है, ओके देन ठीक है। अगर आपको लगे कहीं पे रिवर्सल, प्रॉपर रिवर्सल, लाइक देखो ब्लू बार आया मीन्स रिवर्सल के चांसेस थे, ओके। बट ऐसा भी होता है कि अगर ब्लू बार खाली आपको डराने के लिए आए, ओके, टू मेक ए कॉशन, बट हाँ, जैसे आप अगर चाहो तो कहीं पे अगर गैप डाउन हो या फिर ऐसा कुछ सिनारियो हो, यू कैन एग्जिट योर ट्रेड, बट रिस्क रिवॉर्ड वाइज इट विल गिव यू द प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज इसी के बेसिस पे जो ऑलरेडी जो एक पोजिशनल क्वेरी है उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आप इसको भी यूज कर सकते हो फॉर पोजिशनल, ओके। बट ये आपको ध्यान रखना है वो हमेशा स्विंग लोअर पे हो, ओके। बिकॉज देखो अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने का तो वापस जब नीचे आया, देन वी आइडेंटिफाइड कि हाँ कि ये स्विंग वापस लो बना रहा है, बट इस बार हायर स्विंग बना है, ओके। सो यू कैन यूज दिस फॉर पोजिशन एज वेल, ओके। सो ये सारे एग्जांपल्स थे बुलिश के। आपको और भी एग्जांपल्स अगर आप चार्ट पे, अगर हम इंटरडे में देखें, बहुत सारे मिलेंगे, बिकॉज कल के दिन में मार्केट बहुत शार्प मूव हुआ, ओके। जैसे कि मैंने आपको बोला कि HCL टेक में एक एग्जाम्पल था रिवर्सल का, ओके। लेकिन बेरिश रिवर्सल ज्यादा मिला था, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट सडनली मूव हो गया था, ओके। सो अब हम देखते हैं बेरिश स्टॉक्स, ओके। फर्स्ट इज IOC, okay. कल 15 मिनट्स यू कैन सी दिस वाज नियर डे हाई, ओके, ऑलमोस्ट डे हाई है, बिकॉज दो तीन कैंडल ने सेम टॉप बनाया, ओके। सो अगर आप मैं यहाँ पे देखूं तो ये कैंडल का जो हाई है, ओके, दैट इज डे हाई, ओके। ये कैंडल का जो लो है, दिस विल बी माय एंट्री, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस इज अप्रॉक्स 1 रुपी, ओके। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अप्रॉक्स 1 रुपी है, सो वी कैन इजिली गो फॉर शॉर्ट एंड वी कैन वेट फॉर 1 to 2 रुपी, एटलीस्ट 1:1 पहले लेना है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्ट्रेटजी, then you can go for 1:2, but first go for 1:1, so that you can build a confidence in this strategy, and then you can go 1:2, okay. So अब यहाँ पे जितना रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, you can go for that। अब कल के दिन में मार्केट बहुत ज्यादा शार्प गिरा, इसके लिए काफी स्टॉक्स में, बट यस, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल, बिकॉज वो डे हाई पे भी है एंड यू गॉट दिस रिवर्सल, शार्प रिवर्सल, ओके। देन आप यहाँ पे चेक करोगे मैकडॉवेल, ओके। मैकडॉवेल मैंने यहाँ पे चूज किया, एंड देखो ये रहा डे हाई R4, देखो वो स्टॉक R4 तक रीच किया है, देन इट क्लोज्ड, एंड व्हेन दिस कैंडल्स लो ब्रेक यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट, ओके। सो अगर हम यहाँ पे देखें 11 पॉइंट्स के आसपास कुछ रिस्क है, ओके। सो वी कैन वेट फॉर 11 पॉइंट्स एटलीस्ट। सो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है 33 के आसपास, 833.50 पे वी वेंट फॉर अ शॉर्ट, ओके। सो आपका जो है यहाँ से 11 पॉइंट्स मीन्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो 21 के आसपास वी शुड 22 के आसपास रिकवर कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे 18 का एक पिवट है, ओके। 819 का एक पिवट है, सो वी कैन रिकवर ओवर दैट, बिकॉज अगर आपको पिवट्स मिल रहे हैं, देन फर्स्ट गिव द प्रेफरेंस टू द पिवट्स, ओके। पिवट्स कौन से हैं? क्लासिक पिवट्स, ओके, क्लासिक 4, दैट विल हेल्प यू। देन अगर आप यहाँ पे देखो, थर्ड एग्जांपल है GMR इंफ्रा, GMR, ओके। यहाँ पे GMR, ओके। सो अब देखो ये जो है सेम सिनारियो, जैसे आपको IOC में मिला था कि एक टॉप सिमिलर है, देन यू गॉट रिवर्सल एंड देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। अब यहाँ पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, 33.15 इज दी योर टारगेट, बिकॉज वो एक पिवट है, ओके। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखोगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज अनदर bearish रिवर्सल, ओके। नाउ वी मूव टू द फोर्थ एग्जांपल विच इज विप्रो। अब ये देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। विप्रो, अब देखो विप्रो ने टॉप बनाया यहाँ पे, ओके, रेजिस्टेंस से टॉप बनाया, देन यू गॉट दिस रिवर्सल, ओके। उसने कहीं पे ब्लू लाइन ना ही ग्रीन बार कुछ बनाया, स्ट्रेट फॉल गया, ओके। सो
यस, अगर आप कोई भी चीज को अगर फॉलो कर रहे हो यहाँ पर तो चांसेस है, अगर आपको ब्लू मिला तो कॉशियस रहिए, लेकिन अगर ब्लू नहीं मिला तब तक आप उसको ट्रेल कीजिए। बट व्हेन यू गॉट अ ब्लू और कहीं पे अगर ऐसा लग रहा है कि साइडवेज ज्यादा जा रहा है, देन यू कैन एग्जिट दैट ट्रेड। ओके, अब देखो ये ट्रेड कभी आया था 6-4। ओके, बट मंदी 6-4 से इसने पहले ही दिखा दी थी कि हाँ कि अभी यहाँ से चलेगा। फ्रॉम 6 अप्रैल इट वाज रनिंग एट 590 एंड टुडे इज रनिंग एट 468, जस्ट ऑन दैट बेसिस ऑफ दैट एग्जांपल, बिकॉज आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ में रिवर्सल मिल रहा है। ओके, सो जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसको आप अपने सिस्टम में यूज कर सकते हो, एंड साथ में अगर आप चाहो तो कोई भी एक इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो उसके साथ में टू गेट मोर कंफर्मेशन। ओके, तो चांसेस है स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बट हाँ अगर हम इसी सिस्टम को प्रॉपर फॉलो करते रहेंगे देन डेफिनेटली विल गेट अ गुड चांस कि हम उसको अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर रिवर्सल मिला हुआ है बट इट्स नॉट अ डे हाई, तो वो ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड नहीं लोगे बिकॉज वो डे हाई पे नहीं है। अगर लिया होता तो सिंपली आपको स्टॉप लॉस लेके वो चला गया मार्केट। ओके, सो बस हमें ध्यान यही देना है कि जब आपको स्कैन होगा तो आपको जस्ट खाली स्टॉक चेक करना है कि वो डे हाई पे है या नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं स्कैनर पे, बिकॉज ये चीज हम मैनुअली बार बार कितना करेंगे ना। सो अब हम जाते हैं स्कैनर पे, हाउ टू क्रिएट स्कैनर। बहुत सिंपल है, दो ही कंडीशन है। ओके, विच इज ऑलरेडी इन अ सॉफ्टवेयर। ओके, आपको जाना है क्वेरी में, आपको जाना है टेक्निकल क्वेरी में। ओके, आप कोई भी एक विंडो ओपन कर लीजिए। ओके, जब आप यहाँ पे यूज करते हो ना टेक्निकल क्वेरी में, आपको एल्डर इम्पल्स सिस्टम चूज करना है। ओके, इन दैट अगर आप जैसे इसको चूज करोगे, कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन है क्रॉस जीरो लाइन अपवर्ड, विच मीन्स कि पहले रेड बार था, अभी सडनली ग्रीन बार हो गया। ओके, सो दिस इज फॉर बाइंग। ओके, ये बाइंग के लोग है तो आप इसको ऐड कर दोगे। एंड सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है उसके अंदर ही क्रॉस जीरो लाइन डाउनवर्ड, जो कि एक बेरिश सिग्नल है। ओके, ये दो ही कंडीशंस को डाल के अगर आप इसको 15 मिनट्स में रन करोगे तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे रिवर्सल के। जैसे एग्जांपल अगर मैं चाहूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल के दिन में एट मॉर्निंग, बिकॉज देखो ये रिवर्सल में एटलीस्ट 2 कैंडल्स होंगे, विच मीन्स हमारा सेटअप जो है आफ्टर 9:45 स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर मैं देखूं कि 9:45 को क्या कितने कैंडल्स थे जिन्होंने कितने स्टॉक्स थे जिन्होंने रिवर्सल दिखाया। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये 9:45 है, विच मीन्स मुझे यहाँ पे यूज करना है, स्कैन करना है। देखो खाली एक ही स्टॉक है रेसिस्टेंट। ओके, ये चालू हुआ एट 9:45, इसने यहाँ पे शॉर्ट दिखाया, वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट। एक कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा लो बिकॉज कैंडल थोड़ी बड़ी है, एंड देन ये रीच द टारगेट। ओके, देन अगेन अगर मैं चाहूँ सो इसका और पीछे जाते हैं 22। ओके, मीन्स कल के दिन में जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ गुजरात गैस, ये रहा देखो, ये था, बट ये ट्रेड क्यों नहीं बनेगा सेल का, बिकॉज इट वॉज नॉट एट डे हाई। ओके, आपको हमेशा देखना है वो डे हाई पे होना चाहिए। कोटक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, नाम इंडिया सेम सिनारियो, डे हाई पे नहीं था ये, इसके लिए वो शॉर्ट के लिए अपन नहीं आएंगे। ओके, सेम वे इसको और थोड़ा स्कैन करेंगे, एचसीएल टेक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बिकॉज ये डे लो पे था, यू गॉट बुलिश सिग्नल एंड देन यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग। ओके, सो सेम वे अब ये दो सिंपल कंडीशन को आप यूज कर सकते हो इन योर ट्रेडिंग सिस्टम, एंड देन यू कैन इजिली गो फॉर द स्टॉक्स। अब अगर यहाँ पे आप चेक करोगे कि ये सिग्नल है बट डे लो पे नहीं है, सो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज लिमिटेड ट्रेड जरूरी है। ओके, एंड कॉन्फिडेंट होना जरूरी है ट्रेड्स के लिए। सो इफ यू फॉलो दिस सिस्टम, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग और शॉर्ट वट आर द डायरेक्शन दैट दिस क्वेरी विल शो यू। ओके, क्वेरी कंडीशंस को यूज क्या करना है, सिंपली व्हेन यू यूज EIS, उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन है क्रॉस जीरो लाइन अपवर्ड, विच इज फॉर बुलिश, एंड क्रॉस जीरो लाइन डाउनवर्ड फॉर बियरिश। बस ये दो कंडीशन डालनी है,
इसको 15 मिनट्स पे रन करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। ओके, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे, ओके, यू कैन फॉलो दिस एग्जांपल्स, एंड अगर आपको लगे कि आपको कुछ डाउट्स हैं और इफ यू हैव एनी क्वेरीज, सो आप हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको क्वेरीज बनाने में प्रॉब्लम है, वी विल शेयर यू द क्वेरी। ओके, सो अगर आपको लगे कि कुछ मेल्स आपको अप्रिशिएशन या फिर इफ यू हैव एनी डाउट्स, then you can also send a mail on this support@spidersoftwareindia.com. Okay, I think this formation will help you in your trading style, and hopefully this will improve your consistency. Okay, thank you for joining today.